Good morning, students. I welcome all of you in this virtual class of Office Automation. Topic for today is storage devices. The computer's memory is limited and temporary. Therefore, there is a need to use secondary storage devices. So, as we all know, computer's memory is limited means it is having certain limit. Beyond than that limit, computers cannot store any kinds of informations. So, we can say if computer's memory is limited, if in case of storing some extra information, we can use secondary storage devices. Secondary storage devices or secondary memory is also known as external or auxiliary memory, right? Secondary memory means it is not the original memories of computer, but it is connected externally with the help of a cable. So they help to store large amount of data permanently. So secondary storage devices are able to store large information or large amount of data permanently. This can be easily connected to the computer for quick access. Data cable is there, or if you are having a secondary storage devices, then it is very easy that at any time you can you can connect your storage devices with the computer, and whatever the informations you required, you can access from that. Once done, we can easily disconnect from them from the computer as well. Storage devices are easily carried from one place to another. So this is the most important characteristics of a secondary storage devices, that they can be easily moved from one place to another, right? Different types of secondary storage devices are floppy disk, CD, DVD, hard disk and pen drive, etc. So these are the example of storage devices. One by one we will understand these different storage devices. First example of a storage device is floppy disk. Floppy disk are storage devices often called floppies or diskettes. Floppy disk is a flexible plastic disk that is coated with a magnetic material. Floppies are transferable from one computer to another. The disk consists of two sides with data stored on both sides. So फ्लॉपी डिस्क आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो प्रेजेंट टाइम्स में कहीं यूज़ नहीं आती है. फ्लॉपी डिस्क की पोजीशन आज की डेट में एक पेन ड्राइव ने ले ली है. एक छोटी सी पेन ड्राइव जो आपकी जेब में रह सकती है, और पेन ड्राइव के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हो अगर आपके पास पेन ड्राइव है. तो फ्लॉपी डिस्क आज से कुछ साल पहले यूज़ में थी, राइट. तो फ्लॉपीज जो थी वो एक टाइप से एक मैग्नेटिक मटेरियल्स उसके ऊपर कोटेड होता था, राइट. और वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क टाइप रहती थी, और उसमें मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड होता था, राइट. जो डिस्क थी वो दोनों साइड से उसमें आप भी कह सकते हैं डेटा स्टोर्ड हो सकता था.
फ्लॉपी डिस्क बहुत ही चीपर थी प्राइस में। एंड पहले तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो भी है उनको इंस्टॉल करना पड़ता था एक कंप्यूटर्स पे, राइट। सो फ्लॉपी डिस्क जो है उसको हम सेकेंडरी डिवाइस क्यों बोलेंगे, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं रहती है। फ्लॉपी डिस्क को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है और वो एक्सटर्नल होती है। दो टाइप की फ्लॉपी डिस्क है, 5.25 इंचेस और 3.5 इंचेस, मतलब दो साइज़ में फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल थी उस टाइम। 5.25 इंचेस जो फ्लॉपी डिस्क थी वो IBM ने 1970 में बनाई थी। 5.25 इंचेस जो फ्लॉपी डिस्क थी उसमें स्क्वायर फ्लेक्सिबल जैकेट्स, प्लास्टिक जैकेट्स टाइप से कवर रहता था, राइट। सेंटर में बहुत बड़ा होल होता था और जो कि डिस्क ड्राइव की जो स्प्रिंडल है वहाँ पे फिट हो जाता था। ये जो फ्लॉपी डिस्क थी 5.25 इंचेस, उसमें कितनी स्पेस आती थी, बरोबर 1.25 MB ऑफ डेटा, राइट। तो आज की डेट में ये जो डेटा है स्टोरिंग कैपेसिटी, वो स्टोरेज डिवाइस की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सेकंड टाइप की फ्लॉपी डिस्क जो अवेलेबल थी उस टाइम वो 3.5 इंचेस फ्लॉपी डिस्क was round piece of film coated and encased in a rigid plastic shell equipped with a sliding metal cover। तो 3.5 इंचेस जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव थी उसमें थोड़ा शेप और फॉर्म अलग था, बाकी जो भी स्पेस थी 5.25 इंचेस जो जनरली बड़ी थी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उसमें 1.2 MB डेटा रहता था स्टोर, और 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB ऑफ डेटा स्टोर होता था। सेकंड टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क is the most commonly used secondary storage device. It is flexible inside the CPU box. A hard disk consists of multiple disks enclosed within an aluminum casing. A hard disk, also called a hard drive, right? It stores all the software and data, instruction and information. The disks are coated with a magnetic material and are stacked one above the other as a platter. It uses magnetic spots to represent bits. Presence of a magnetic spot represents 1 and its absence represents 0। जो हार्ड डिस्क ड्राइव थी वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का काम करती थी। उसमें जनरली ये डिफरेंस था कि एक एल्यूमिनियम का केजिंग रहता था, एक एल्यूमिनियम का बॉक्स है। आज की डेट में भी जो हार्ड डिस्क का शेप है, एक हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर्स के इंटरनली रहती है और एक हार्ड डिस्क जो है वो एक्सटर्नली, मतलब आप थ्रू केबल वो कंप्यूटर्स में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। दोनों का फंक्शन एक ही है कि डेटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन देना और इंफॉर्मेशंस गैदर करना, वही उनका रोल या फंक्शंस आप कह सकते हो। तो ये जो हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड रहती है। कोटेड मतलब जो उसका आउटर कवर है, राइट, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड रहता था और एक के ऊपर एक, राइट, एक प्लेटर की तरह वो दिखता था। फिर जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो, उसमें मैग्नेटिक स्पोर्ट्स का यूज़ होता है। उनको बिट्स, उनकी बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक स्पोर्ट्स रहता है
और ये जो मैग्नेटिक स्पोर्ट्स का जो प्रेजेंस है, राइट, तो वो उसको 1 बोलेंगे और एब्सेंस को 0 बोलेंगे, राइट। सो हार्ड डिस्क जो है उसकी जनरली स्पेस क्या है, कितनी स्पेस वो स्टोर कर सकता है, तो 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB, इतनी हार्ड डिस्क रहती है, राइट। So data is accessed when the disk spin at high speed. The hard disk can be easily connected to the computer with a wire, right? So hard disk are of two types. दो types की hard disk है. First one is internal hard disk, जो आपको मैंने समझाया पहले कि इंटरनल हार्ड डिस्क मतलब वो कंप्यूटर्स के इनबिल्ट ही रहती है। कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप्स पे हार्ड डिस्क उसमें इनबिल्ट रहेगी, राइट, जो कंप्यूटर के अंदर है, जो हम बाहर नहीं निकाल सकते, या जो अंदर रहती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो बाहर मतलब एक्सटर्नली कंप्यूटर के अंदर नहीं रहती है, मगर एक केबल के थ्रू वो कंप्यूटर्स में हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये बैकग्राउंड में इमेजेस है इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दोनों का, देख सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म है CD। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस जो है दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। CD is an optical storage media that is circular in shape. CD consists of tracks and sectors. CD consists of number of invisible circles called tracks. It is portable device that store large amount of data. The tracks are further divided into sectors. Data is recorded on these tracks in the form of tiny magnetic spots. तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बाद CD का इन्वेंशन हुआ था मार्केट में। CD का मतलब है आज की डेट में भी हम उसको यूज़ करते हैं CD, तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलेंगे हम उसको। तो वो भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसमें जनरली आप देखोगे कि उसमें इनविजिबल सर्कल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसको हम ट्रैक्स बोलेंगे, राइट। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। जो राउंड सर्कल्स टाइप्स आपको सीडीज में दिखते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड रहते हैं। डेटा जो है इन्हीं ट्रैक के बीच में स्टोर होता है, रिकॉर्ड होता है इन फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स के थ्रू। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट represents the bit 1 and its absence the bit 0। जो मैग्नेटिक स्पॉट्स का प्रेजेंस है, अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बिट बोलेंगे 1 एंड उसके एब्सेंस को हम बोलेंगे बिट 0। CD-ROM इज अ फ्लैट राउंड डिस्क मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट। सो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, दैट इज पॉलीकार्बोनेट। इट मेजर्स 120 mm in diameter and has a hole in its center। तो CD के बीच में आपको एक होल टाइप बना हुआ दिखेगा। सामान्य जो डिस्क है उनकी कैपेसिटी है 700 MB ऑफ डेटा। हावेवर स्क्रैचेस में कॉज डैमेज टू डेटा। जितना स्क्रैच पड़ेंगी CD में उतना CD खराब हो जाएगी, राइट। सो अगेन CD-ROM. CD-ROM comes into two forms, that is CDR. CDR stands for compact disc recordable. CDR is recordable in write once format. It is multi-session compact disc on which you can record your own items such as text, graphics and audio. The data written on this disk cannot be erased. Data can be written on it once and then can be read a multiple times। तो दो टाइप की सीडीज अवेलेबल है, एक रिकॉर्डेबल है, एक री राइटेबल सीडीज है। मतलब कई सीडीज़ को दोबारा आप दोबारा राइट कर सकते हो, मगर कई सीडीज़ में एक बार आपने इंफॉर्मेशंस जो डाल दी
वो दूसरी बार दूसरी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं डाल सकते हो। तो CDR जो है वो एक, उसमें आप चीज़ें रिकॉर्ड तो कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, मगर एक CD का यूज़ वंस टाइम एक ही बार होगा। मगर CDRW में रीराइटेबल मतलब कि वो दोबारा उस पर आप डेटा, जितने भी ओल्ड डेटा होंगे आपको इरेज करके न्यू डेटा उसमें अगेन फीड कर सकते हैं। CDs के बाद जनरली जो इन्वेंशन हुआ वर्ल्ड में वो था DVD, राइट। DVD का फुल फॉर्म देखें तो हम, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क, राइट। सो CD के बाद CDs में और ज़्यादा रिसर्च करके उन्होंने नया प्रोडक्ट मार्केट में इन्वेंट किया। DVD है जो CDs की तरह ही दिखती है, मगर उनकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 4.7 GB से लेके 17 GB तक वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो आप जनरली बड़ी बड़ी मूवीज़ इसमें सेव कर सकते हो। हावेवर इट कैन स्टोर मोर डेटा देन ए CD, राइट। सो आपको बोला मैंने, एक DVD जो है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी CD से ज़्यादा है, राइट। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए DVD इज 7 times मोर देन ए CD। सो 7 times ज़्यादा उनमें कैपेसिटी रहती है, स्टोरिंग कैपेसिटी। DVD drives are required to read DVDs which look similar to CD drives। अगेन जैसे CDs में दो टाइप्स की CDs अवेलेबल है, एक तो CDR और CDRW, उसी टाइप से दो टाइप की DVDs अवेलेबल है। एक तो DVDR है, मतलब जो एक सिंपल रिकॉर्डेबल रीड वंस फॉर्मेट, मतलब एक ही बार उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, DVDR। और जो DVDRW है, रीराइटेबल, इट मीन्स इट इज़ rewritable DVD format। Data on this disk can be erased and recorded many times without damaging the medium। तो DVD ड्राइव लास्ट टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, उसको हम बोलेंगे पेन ड्राइव, जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं। अब कोई भी CD यूज़ नहीं करता है, कोई भी पेन ड्राइव तो सब यूज़ करते हैं। कोई CD यूज़ नहीं करता, कोई DVD यूज़ नहीं करता, कोई फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं करता। तो टुडेस 21st सेंचुरीज़ में जो टेक्नोलॉजी अभी जो प्रेजेंट चल रही है, उसमें पेन ड्राइव जो है वो यूज़ होती है एज ए स्टोरेज डिवाइस। आप एक सिंपल पेन ड्राइव में बहुत सारे डेटाज जो है वो एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मुझे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है असेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मैं अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करके वो कहीं भी ले जा सकता हूँ, उसको कहीं भी कोई भी कंप्यूटर्स में खोल सकता हूँ। तो पेन ड्राइव है जो इट्स कॉमनली यूज्ड एज ए स्टोरेज डिवाइस। दे आर ऑल्सो नोन एज USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। इट इज स्मॉलर, पोर्टेबल एंड रीराइटेबल स्टोरेज डिवाइस। तो ये जो पेन ड्राइव है छोटी सी, उसमें आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, फिर डिलीट कर सकते हो, फिर डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। और साइज़ में बहुत छोटी है, राइट। और उसमें कोई स्क्रैच पड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। डिस्क में तो ये है कि ख़राब हो जाएगी, मगर पेन ड्राइव कभी ख़राब होगी ही नहीं, राइट। ख़राब भी नहीं होगी, ज़्यादा उसमें साइज़ भी नहीं है, और उसमें डिलीट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, राइट। सो इट स्टोर्स डेटा यूजिंग ए मेमोरी कॉल्ड ए फ्लैश मेमोरी, राइट। सो उसमें जो डेटा मेमोरी स्टोर होता है वो एक फ्लैश मेमोरी की तरह काम करता है। दिस डिवाइस आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू CD-ROMs और DVDs। तो CD और DVD रोम्स का कंपैरिजन करें तो ये बहुत छोटी साइज़ में रहती है,
Right, they can be easily carried in our pocket and come in storage capacity ranging up to 512 GB. Right, so being immune to scratches with no moving parts to cause failure of drive, they are more reliable. तो पेन ड्राइव आज की डेट में सबसे रिलायबल है, चाहे वो सीडी हो, डिस्क हो, क्योंकि सीडी कहीं एक जगह से दूसरी ले जाने में भी प्रॉब्लम होगा, उसमें स्क्रैच नहीं होना चाहिए। राइट, बहुत सारा सेफ्टी आपको करना पड़ेगा, मगर एक पेन ड्राइव आपके पॉकेट में रह जाएगी और उसमें कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे और आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हो। तो रिलायबल का मतलब है कि इजी, कितना इजी है कोई स्टोरेज डिवाइस को ले जाने के लिए। राइट, पेन ड्राइव इज कनेक्टेड इनटू सॉकेट ऑन द कंप्यूटर कॉल्ड यूएसबी पोर्ट। तो कंप्यूटर्स में ऑलरेडी एक यूएसबी पोर्ट की जगह रहती है, तो पेन ड्राइव उसमें आराम से आप कनेक्ट कर सकते हो। राइट, when pen drive is plugged into the USB port of a computer, the computer automatically devices detect these devices। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो अपना काम करेगा और दिखाएगा कि पेन ड्राइव कनेक्ट हो गई है। आप इंफॉर्मेशंस उसमें से ले सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी कैरी एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। So pen drive is very easy in today's time. We don't use floppy disk, we don't use DVD, we don't use CD all of the sudden, but this is the examples we can say we are using. So different storage device we have done today, right? I will again highlight them. तो सबसे पहले हमने स्टोरेज डिवाइस में किया फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क दो टाइप की है, 5.25 इंचेस और 3.5 इंचेस। उसके बाद हार्ड डिस्क जो है, राइट, वो एक टू टाइप्स की वो भी है, इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। फिर सीडी में दो टाइप्स की सीडी अवेलेबल है। CDR मीन्स रिकॉर्डेबल, सिंपल रिकॉर्डेबल सीडी, एंड CDRW दैट इज रीराइटेबल सीडी। DVD उसके बाद वो भी टू टाइप्स की है, DVD-R और DVD-RW। और लास्ट में हमने किया जो दैट वाज अ पेन ड्राइव। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल स्टोरेज डिवाइसेस। ये लास्ट में आप देखोगे तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि दे विल आस्क यू द फुल फॉर्म्स। तो CPU stands फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब फुल फॉर्म है। CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, ENIAC EDVAC UNIVAC 1। These were the examples of computer, first computer ENIAC, electronic numerical integrator and computer। Then EDVAC electronic discrete variable automatic computer, UNIVAC 1 universal automatic computer 1, AI artificial intelligence। So these are the full form in exam, it will be asked, exam में पूछ सकते हैं full form। CDEC Center for Development of Advanced Computing। देन IBM का नाम हमने बहुत बार आया हमारे फर्स्ट यूनिट में। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, राइट, IBM एक कंपनी है। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। रैम, रोम, प्रोम, EPROM, EPROM ये मेमोरी है। रैम रैंडम एक्सेस, रोम रीड ओनली, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन EPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PC पर्सनल कंप्यूटर, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
and GUI, graphical user interface. So these are the full form that you can study, right? So this is the end of the chapter number first. Thank you all of you for listening.